Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series that is a wonderful initiative of Udan IAS, and I hope you people are also enjoying this initiative. In the last of the class, we majorly had discussed regarding very important concepts of money and banking. Okay. To be more specific, till now we have discussed regarding liquidity adjustment facility. We have discussed regarding your repo rate. We have discussed regarding reverse repo rate. We have discussed SLR, CRR, that is cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. We have discussed bank rate as well, है ना? Then we have also discussed how these instruments could be used in order to regulate the liquidity in the market. And when we are saying regulating the liquidity, indirectly we are connecting with what? That is the inflation as well, है ना? So how we are connecting these instruments with liquidity and with liquidity to inflation, ठीक है? These all things we had discussed. Okay. So in this class, we will be discussing regarding one more very important instrument that is used by the RBI, and that is your open market operation. क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? We will be discussing regarding open market operation. Now see, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो देखो इसमें क्या है, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मार्केट? मार्केट इफ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मार्केट, आई विल बी सेइंग मार्केट इज एनी प्लेस, ठीक, वेयर योर ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस, कौन सा ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक, वेयर योर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक? Able to understand? That is, you are giving away something or taking back something by exchange of certain kind of currency and all those kind of things. That I will be saying is a market. So a market is having a specific characteristic, that is, ठीक, अच्छा जरूरी नहीं है कि मार्केट में क्या हो कि मार्केट इज अ प्लेस ओनली, ठीक? फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसमें मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट इज समथिंग हैपनिंग ऑन अ डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो अ मार्केट, बिकॉज वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी अ ट्रांजैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, है ना? सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर एज वेल, मार्केट में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एंड दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दैट यू शुड बी हैविंग one good buyer, you should be having a buyer, as well as you should also be having a seller, ठीक? You should be having a buyer as well as you should be having a seller, है ना? So that is, you have to keep in mind, you should be having a buyer as well as you should be having a seller. Now when I am saying that you should be having a buyer and a seller, that will be constituting a market. Similarly here as well, open market operation, ठीक? So here I will be saying buyer and seller could be both RBI as well as your scheduled commercial banks, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, दे विल बी एक्सचेंजिंग द सिक्योरिटीज, ठीक है, दे विल बी, आई शुड बी सेइंग, दे शुड बी क्या, ट्रांजैक्टिंग इन अ मैनर दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड। मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड करवाऊंगा इसमें। अच्छा, सो इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रेड को, ठीक है, दिस एंटायर ऑफ द थिंग, ठीक है, दिस एंटायर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग दैट विल बी हैपनिंग, आई विल बी कॉलिंग दैट थिंग एज व्हाट? आई विल बी कॉलिंग दैट थिंग एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेयर द थिंग विच इज गेटिंग सोल्ड एंड द थिंग विच इज गेटिंग बॉट इज बोथ क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड हाउ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट इज क्या, गेटिंग बोथ bought and sold, that is getting both bought and sold, ठीक है, how it will be influencing the liquidity in the market, that I will be saying is what is constituting your open market operation, is constituting what, your open market operation. ठीक है, आई होप दिस एंटायर ऑफ द थिंग मस्ट बी क्या, वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो देखना थोड़ा सा, प्लीज ट्राई टू हैव अ लुक, ठीक? इफ आई एम सेइंग दैट इज
आरबीआई इज आउट देयर, फिर से वही क्या, जैसे हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं, आरबीआई इज देयर, ठीक है, एंड हियर योर बैंक्स आर देयर, ठीक. For example, I am saying that there is excess liquidity in the market. There is excess liquidity in the market. अब आप सबको पता है what is liquidity. I should not be explaining it again. I am saying that there is excess liquidity in the market, and because of this excess liquidity, ठीक है, there could be inflation. अब मैं सब समझा चुका हूं क्या कि liquidity की वजह से इन्फ्लेशन क्यों आ सकता है, ठीक. There could be inflation, ठीक. नाउ व्हाट द बैंक्स विल बी डूइंग, ठीक है, व्हाट द आरबीआई विल बी डूइंग, आरबीआई विल ट्राई टू क्या, सक अप दिस एक्सेस लिक्विडिटी. अच्छा, वो लिक्विडिटी वापस कैसे ले सकता है, ठीक. लिक्विडिटी वो ले सकता है क्या, बाय फोर्सिंग द बैंक टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है. तो जब ये बोलेगा कि भैया आप मुझसे लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यू शुड बी टेकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर मी एंड इन रिटर्न गिव मी द liquidity. So I will be saying indirectly it has led to क्या, lesser liquidity in the market, ठीक है. अच्छा, पहला ऑप्शन ये हो गया. अच्छा, अब देखो दूसरे में क्या हो सकता है. इफ आई एम सेइंग, कुछ रेपो रेट जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल वही चीज है, बस पूरे एंटायर ट्रांजैक्शन को मैं क्या बोलता हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक. नाउ सी, ठीक, अब देखो इफ आई एम सेइंग आरबीआई इज आउट देयर, ठीक, एंड यहां पे क्या है, ठीक. नाउ हियर आई एम सेइंग वेरी लेस लिक्विडिटी, पीपल आर नॉट हैविंग मनी, ठीक है, लोग के पास पैसा ही नहीं है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है. रिसेशन इज आउट देयर, मंदी है, ठीक. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आरबीआई क्या बोलेगा कि भैया ऐसा करो, बैंक तुम मुझसे क्या ले लो, यू टेक लिक्विडिटी कैसे, यू सेल ऑफ. यहां पे क्या कर रहा था, देवर फोर्सिंग द बैंक, ठीक है, दैट यू शुड परचेज लिक्विडिटी, ठीक है. हियर देवर मेकिंग द बैंक्स टू परचेज लिक्विडिटी, टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी, ठीक है, देवर फोर्सिंग द बैंक टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक. इधर वो क्या बोल रहा है, इधर दे आर सेइंग व्हेनेवर देयर विल बी लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, they will be saying that is here they are forcing the bank to sell off liquidity, ठीक है, sell off government security, ठीक. so यहां पे क्या कर रहे हैं, they are selling off government security, sell government security, ठीक, and in return, ठीक है, RBI will be giving the money to them, ठीक है, so it will be your liquidity यहां से फ्लो करेगा, ठीक है. सो इन टर्न इसको मैं बोल सकता हूं, हियर आई एम सेइंग, हियर आई एम इंजेक्टिंग द मनी इन द मार्केट, आई एम इंजेक्टिंग द मनी इन द मार्केट, है ना. सो दैट आई हैव क्या टोल्ड यू पीपल. नाउ सी, इफ आई एम टेलिंग यू कि एक तो ये हो गया क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन में फर्स्ट एम, इफ आई एम टेलिंग यू फर्स्ट एम इज व्हाट, फर्स्ट एम इज दैट यू आर मैनेजिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज मैनेजिंग द इन्फ्लेशन. आप इन्फ्लेशन मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने बढ़िया से समझाया. नाउ सी, अब क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, यू कैन ऑल्सो क्या, स्टेबिलाइज द एक्सचेंज रेट, स्टेबिलाइजेशन यू कैन डू. एक्सचेंज रेट स्टेबिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि अभी क्या है, $1 इज इक्वल टू, मान लो फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज, ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक. एंड हियर आई एम सेइंग $1 इज इक्वल टू क्या, 60 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक. नाउ सी, ये वाला जो केस है दैट इज गोइंग फ्रॉम 80 to 60 इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ठीक. इधर 80 to 100 जाने में आई एम सेइंग दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. नाउ सी, RBI can regulate this appreciation and depreciation of the currency as well. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि अभी क्या है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है, क्या
$1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है। नाउ इफ आई वॉन्ट, अच्छा मेरा क्या कर रहा है, क्या करेंसी एप्रिशिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, करेंसी एप्रिशिएट कर रहा है। एप्रिशिएट कर रहा है मतलब फॉर एग्जांपल योर रूपी इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, योर रूपी इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, एंड हियर आई एम सेइंग योर रूपी इज बिकमिंग मोर चीपर, योर रूपी इज बिकमिंग मोर चीपर। अच्छा, अब अगर आरबीआई को कोशिश करनी है, फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू, क्या दे डोंट वॉन्ट देयर करेंसी टू बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इससे आपके क्या ट्रेड इफेक्ट हो जाएगा। मान लो क्या वो लोग बोलते हैं कि 80 to 60 हमें नहीं जाना, वी डोंट वॉन्ट टू गो फ्रॉम 80 to 60। सो अब आप क्या करेंगे, क्या आपकी करेंसी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव का मतलब है, ज्यादा एक्सपेंसिव का मतलब है व्हाट दे आर सेइंग दैट इज देयर इज लेसर अमाउंट। कोई भी चीज एक्सपेंसिव कब होती है, जब वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, ठीक। सो आई एम सेइंग इन दिस केस योर करेंसी विल बी लेसर इन क्वांटिटी, तभी मैं बोलूंगा एक्सपेंसिव है, ठीक। अब मैं क्या बोलता हूं, ये एक्सपेंसिव है, ठीक। एक्सपेंसिव से मुझे इसे चीपर करना है, आई हैव टू मेक इट चीपर। हाउ आई विल बी मेकिंग इट चीपर, आई विल बी द थिंग दैट इज लेसर इन क्वांटिटी, आई विल बी मेकिंग मोर इन द क्वांटिटी, ठीक। पहले एक चॉकलेट को लेने के लिए क्या 10 लोग थे, 10 लोग थे, ठीक। तो एक चॉकलेट को लेने के लिए अगर 10 लोग थे, ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें जो शॉपकीपर था ही वॉज वेरी रूड कि नहीं भैया मुझे नहीं देना, मैं तो इसको 100 रुपए में बेचूंगा, ठीक। अब इसी एक चॉकलेट को लेने के लिए अब मान लो क्या उसके पास 10, मान लो ऐसे क्या उसके पास अब 5 चॉकलेट है। अब 5 चॉकलेट को लेने के लिए मान लो 1 लोग है, ठीक। नाउ ही विल बिकम मोर हम्बल, ही विल बिकम मोर हम्बल, है ना, कि भरे भैया 5 आप ले लो, हमारे पास और कोई सेलर नहीं है, तो वो रेट भी कम कर सकता है। सिमिलर इज द केस ओवर हियर, यहां पे व्हेन योर करेंसी इज मोर इन क्वांटिटी, करेंसी इज मोर इन क्वांटिटी, सो दैट मींस इट विल बी क्या, चीपर, रिलेटिवली चीपर। व्हेन योर करेंसी इज लेसर इन क्वांटिटी, योर करेंसी विल बी व्हाट, जब आपकी क्या करेंसी कम क्वांटिटी में है तो एक्सपेंसिव है, ठीक, ज्यादा क्वांटिटी में है तो चीपर है। सिमिलर इज द केस। Now see, I am saying that is my currency is becoming 80 to 60. It is becoming more cheaper. अच्छा, cheaper कैसे हो रही है, ऐसे देखना, क्या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मैं बोलूं यहाँ पे $1 इज इक्वल टू वन, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर इसकी वैल्यू है $1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर मेरा छोटा है, न्यूमरेटर मेरा यहां पे क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर मेरा छोटा है, ठीक है। यहां पे डिनोमिनेटर मेरा क्या है, बड़ा है, ठीक, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, सो इट विल बी एक्सपेंसिव। यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इट विल बी चीपर, ठीक है। अब सुनो, इफ आई एम ट्राइंग टू limit, if I'm trying to limit my currency to becoming more expensive, I should be making it cheaper। तो cheaper करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I should be क्या, infusing more liquidity, मैं ज्यादा मनी सप्लाई कर दूं, I should be increasing the money supply, ठीक। तो it will become cheaper and I can protect my currency from going from 80 to 60। अब मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू मेक द बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक कि भैया आप क्या करिए, ठीक है, मुझे इसमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, सो मैं बोलूंगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो, क्योंकि इससे लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। सो आई विल बी सेइंग यहां पे दे विल बी क्या, मेकिंग द बैंक टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक। दूसरा केस अगर मैं बोलता हूं आई एम सेइंग दैट इज $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज जा रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, मतलब 80 to 100 जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट माई करेंसी टू बिकमिंग चीपर एंड रादर आई शुड बी सेइंग माई करेंसी शुड बी क्या, बिट मोर एक्सपेंसिव। तो यहां पे क्या हो रही है, देयर इज टेंडेंसी टू बिकम चीपर। Now I should be saying that is it should be becoming more expensive। एक्सपेंसिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मनी सप्लाई रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। चीपर करने के लिए मुझे
क्या अपनी करेंसी को कम नंबर पे रखना पड़ेगा, तभी तो चीप बनेगी, क्योंकि जो चीज लेस होती है वही उसी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक। सो मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, एंड व्हेन आई हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, आई हैव टू क्या, आई हैव टू suck up the liquidity. If I have to suck up the liquidity, so I have to make ensure that is banks are purchasing the government security. Banks are purchasing the government security. So in order to make it cheaper, I will be purchasing the government security. I will make the bank to purchase GSEC. ठीक. And that is how your open market operation could also be helpful in exchange rate stabilization. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो कभी 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 कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, एंड ऑब्वियसली द फाइनल अल्टीमेट गोल इज व्हाट, टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। अब एक बार पीपीटी से भी देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व द परचेज और द सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट, दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, ठीक, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल होता है। When the RBI buys government security, when the RBI buys government security, buys मतलब ये देखो ये जा रहा है, ठीक है, ठीक, मतलब RBI ये क्या कर रहा है, ठीक। When the RBI, if I'm saying RBI, यहाँ पे बैंक को बोल रहे हैं परचेज करने को, अगर बैंक बोल रहा है परचेज करने को तो मतलब RBI को क्या बोलेंगे, ठीक। RBI क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, नहीं उल्टा हो गया, ठीक। यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, हियर आई एम सेइंग दैट इज आरबीआई इज गिविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज आरबीआई इज सेलिंग, ठीक है, आरबीआई सेलिंग, तभी तो जब ये सेल करेगा लिक्विडिटी यहां पे जाएगी, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहा है आरबीआई, ये बैंक का था, ये जो परचेज लिखा है ये बैंक के लिए लिखा है, ठीक है। एंड हियर आई एम सेइंग दैट इज इफ बैंक इज सेलिंग, इफ द बैंक इज सेलिंग तो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई इज परचेजिंग, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज आरबीआई बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज आरबीआई इज बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इंजेक्ट्स द मनी, ठीक है, ठीक। दैट इज आरबीआई, देखो क्या कर रहा है, आरबीआई परचेज कर रहा है, आरबीआई बाय कर रहा है, एंड दैट इज हाउ इट इज इंजेक्टिंग, ठीक, द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। व्हेन द आरबीआई बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इंजेक्ट्स द मनी इनटू द सिस्टम व्हिच इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, ठीक। कन्वर्सली द आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई यहां पे क्या कर रहा है, इस केस में आरबीआई इज सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट एब्जॉर्ब्स द मनी फ्रॉम द सिस्टम which decreases the money supply, ठीक। so that has been your concept of what, that is open market operation। एक टुच्चा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यूपीएससी 2013 का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, in context of Indian economy, open market operation refers to, UPSC 2013 का क्वेश्चन, ठीक। borrowing by the scheduled commercial bank, no. lending by the commercial banks, no. purchase and the sale of the government security by the RBI, yes. so answer is C or 3, whatever is the case, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप यू हैव ऑल्सो बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव एंड उड़ान आईएएस का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उड़ान आईएएस का चैनल, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप अस मोटिवेटेड। अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड करिए, है ना, शेयर करिए, डिस्कशन करिए अबाउट द इंस्टीट्यूट, एंड वी आर डूइंग द गुड वर्क, है ना। सो प्लीज़ डू दैट। And yes, if you want to connect with me, you can also connect with me on my Telegram group, that is Sammy2908, that is my Telegram group. Many of my students are actually a part of it. So please do like, share, subscribe and join my Telegram group. So that's it. Rest we'll be doing in the next of the class. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। Why? Because UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ. चलो बाय बाय बच्चा, see you in the next class, bye.